तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। পিণ্ডদান শব্দটা যখন ছোটবেলা থেকে আমরা শুনেছি তখনই গয়ার নামটাও আমাদের কিন্তু অঙ্গাঙ্গিনভাবে শুনতে হয়েছে। তার কারণ গয়া হচ্ছে পিণ্ডদানের জন্য সবচেয়ে প্রশস্ত বলে শাস্ত্রে উল্লেখ করা আছে। আর এই জন্যই বোধহয় প্রভু শ্রী রামচন্দ্র রাজা শ্রী দশরথের পিণ্ডদান করতে এই গয়াধামেই গিয়েছিলেন। এই গয়া শব্দটা শোনার সাথে সাথে আমাদের এটাও শুনতে হয়েছে যে এখানকার পান্ডারা খুব ভয়ঙ্কর হয়। বিভিন্ন সময় এখানে যারা পিণ্ডদান করতে গেছে এই পান্ডাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গেছে এবং তাদের এত ডিম্যান্ড থাকে যে সেই ডিম্যান্ড পূরণ করতে গিয়ে হয়তো সর্বশান্ত হয়ে ফিরতে হয়েছে। তো গত বছর আমি আমার পিতামাতার পিণ্ডদানের উদ্দেশ্যে গয়াতে গিয়েছিলাম। তার আগে স্বাভাবিকভাবে এই সমস্ত ভয় আমার মনেও ছিল। তো আমি সেই জন্য ভারত সেবাশ্রম সঙ্গে থ্রু দিয়ে আমার বাবা মার পিণ্ডদানটা করিয়েছি। গত ভিডিওতে আমার ভারত সেবাশ্রম সঙ্গে থ্রু দিয়ে যে পিণ্ডদানের বিভিন্ন ঘটনাগুলো আমি যতটা সম্ভব তুলে ধরেছি, আশা করি সেগুলো অনেকের খুব কাজে লেগেছে। কিন্তু আমার বলতে দ্বিধা নেই যে এই ভারত সেবাশ্রম সঙ্গে যে সিস্টেম সেটাতেও কিন্তু আমাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। সেখানে যে ক্রমটা ফলো করা হয়, যেমন প্রথমে একটা ফল্গু নদীতে পিণ্ডদান করার ব্যাপারটা আমরা ছোটোবেলা থেকে শুনি। এরা কিন্তু আদতেও ফল্গু নদীর পাশে ওই যে পুরোহিতকে আমাকে ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল তিনি নিয়ে গেলেন। তিনি প্রথমে নিয়ে গেলেন শঙ্করাচার্য পার্কে, তারপরে নিয়ে গেলেন বিষ্ণু পাদপদ্মে, আর তারপরে নিয়ে গেলেন অক্ষয় বটে। তো আমি পরবর্তীতে আমার যে পান্ডা ছিল সেই মানস ভাইয়া, তার কাছ থেকে আমি শুনেছি যে এইটা আসল ক্রম নয়। আমি মানসজিকে অনুরোধ করেছিলাম যদি সে কখনো ওয়েস্ট বেঙ্গলে আসে তাহলে যেন অবশ্যই আমার বাড়িতে একবার পদধূলি দেয়, আমি একটু সেবা করার সুযোগ পাবো এবং আসল ক্রমটা কি সেই গয়ার খোদ জায়গার লোকের কাছ থেকে শুনতে পাবো। মানস ভাইয়ার যে সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ, মানস ভাইয়া হচ্ছে গয়ার যে মেন যে মন্দিরকে কেন্দ্র করে এই পিণ্ডদানটা অনুষ্ঠিত হয় সেই বিষ্ণু মন্দিরের অন্যতম প্রধান পুরোহিত, এবং ওখানে যে ফল্গু নদীতে যে আরতি হয় সেই আরতিরও উনি প্রধান একজন পূজারী। স্বাভাবিকভাবেই এই মানস ভাইয়া এই যে পিণ্ডদানের সঠিক ক্রমটা কি বলার জন্য সবচেয়ে আদর্শ। তো আসুন আমরা একটু मानस भाइयार काछ থেকে শুনে নিই पिंडदाনের সঠিক ক্রমটা কি। पिंडदान दो प्रकार के होते हैं। एक नॉर्मल जो लोग गुजर जाते हैं उनका कार्यक्रम 3 स्थान पे होता है। पहला फल्गु नदी, दूसरा विष्णुपद मंदिर और तीसरा बट वृक्ष। और जो अकाल मृत्यु गुजर जाते हैं उनका कार्यक्रम 5 स्थान पे होता है। पहला फल्गु नदी, दूसरा सीताकुंड, तीसरा विष्णु भगवान के चरण में और चौथा प्रेतशिला में और लास्ट में होता है बट वृक्ष में। भारत सेवाश्रम जो शंकराचार्य पार्क में काम कराता है उसके बाद में वो विष्णुपद मंदिर में कराता है, उसके बाद में अक्षयवट में कराता है, उसके बाद में प्रेतशिला में कराता है। लेकिन विधान ऐसा नहीं है, विधिवत पहले फल्गु नदी होता है, विष्णुपद मंदिर होता है, प्रेतशिला होता है, तो लास्ट में ये बट वृक्ष में होता है। अच्छा, ये जो पिंडदान होता है ये कितना प्रकार का होता है? पिंडदान 3 प्रकार का होता है, उत्तम, मध्यम और किंचित। हर एक प्रकार का जो पिंडदान होता है इसमें खर्चा कितना आता है? उत्तम से करेंगे तो आपको 3500 रुपये का पैकेज है, मध्यम से है उसमें 3000 है। सबसे लो बजट में कोई काम करना चाहे तो? जी बिल्कुल हो सकता है। उससे लो बजट में किंचित होता है, उसका आपका खर्च आएगा 2500 रुपये। अच्छा, ये जो किंचित होता है जो मिनिमम है, मिनिमम में क्या क्या मिलता है? मिनिमम में आपका पिंड का सामग्री आएगा 1 थाली, 1 लोटा, 1 गिलास, धोती, साड़ी, गमछा, गीता माला, ये आपको किंचित पूजा में दान होगा। और जो मध्यम में आता है? मध्यम में आपको 2 थाल आएगा, 2 लोटा, गिलास, धोती, साड़ी, गमछा, गीता माला आएगा, एक पिता वंश के नाम से, एक माता कुल के नाम से। और उत्तम का क्या मतलब रहा? उत्तम में आएगा कि आपका 3 थाल आएगा, एक पिता कुल के नाम से, एक माता कुल के नाम से, एक समस्त पूर्वा पुरुष के नाम से। प्रेतशिला जाने के लिए 500 रुपया और लगेगा। तो अगर किसी का किंचित हुआ तो प्रेतशिला मिला के उसका 3000 हो जाएगा जी। ये जो मैं जब भारत सेवाश्रम में गया था, मैं अकेला गया था, तो उसलिए मुझे कोई अलग से रूम नहीं दिया गया। उसका कंपाउंड बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन मुझको बताया कि आपको डॉर्मिटरी में रहना पड़ेगा। मैं अकेला गया था, मेरे साथ मनी पर्स था, उसका मेरा कपड़ा था, सब कुछ था।
तो वो रख के टॉयलेट ऐसा तो जाना पड़ता, तो वो तो दिक्कत वाला बात हुआ। तो ये जो पैकेज आप बताया, इसमें होटल तो अलग सा लेना पड़ेगा या उसमें इंक्लूडेड है? होटल आपको डोमेट्री लेते हैं तो उसमें आपको फ्री है, उसमें रहने का खाने का कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप अटैच रूम लेते हैं अलग से तो उसका 500 रुपये चार्ज लगेगा। ये आपका पैकेज का बाहर है क्या? जी बिल्कुल, ये हमारे पैकेज के बाद में है। जैसे लोग 2 दिन 3 दिन रुकते हैं, पूरे गया का घूमते हैं, बुद्ध गया जाते हैं, यहाँ कई स्थान है घूमने के लिए, तो लोग 2 दिन 3 दिन रुक के घूमना चाहते हैं तो उसका चार्ज अलग से लगता है। मेरा जो मेन प्रॉब्लम हुआ था कि उधर तो टॉयलेट बहुत सारे हैं, लेकिन वो टॉयलेट में लाइन बहुत ज़्यादा पड़ता है। बहुत आदमी उधर जाता है कि सभी को नहाना है, फ्रेश होना है, तो बहुत ही लंबा लाइन पड़ता है। तो अगर ये होटल में सभी अटैच बात है तो ठीक है, लेकिन जो डॉर्मिटरी का बात आप कहा उसमें भी क्या टॉयलेट अटैच तो नहीं है, वो अलग ही होगा, तो तकलीफ सेम तरह होगा। अब जैसे लोग फैमिली वगैरह के साथ में जाते हैं, अटैच लेते हैं तो ज़्यादा उनका सुविधा होगा। अच्छा, एक चीज़ तो बहुत तकलीफ हुआ था मुझे, मैं तो मधु त्रयोदशी में गया था पिंडदान के लिए, तो उस टाइम बहुत ही भीड़ भाड़ था वो भारत सेवाश्रम में, तो इसलिए उधर का टोकन कटवाना पड़ता है पिंडदान के लिए। तो मुझे लगभग सुबह से 2.5 से 3 घंटा वो धूप में खड़ा रहना पड़ा। एक तो टाइम वेस्ट हुआ और बहुत तकलीफ हुआ। तो ये जो आप जो सिस्टम बताया, इसमें क्या सेम टोकन वगैरह का सिस्टम रहेगा? हमारे पास टोकन वगैरह का सिस्टम नहीं है। आप गया जी भी जब भी आना चाहेंगे हमसे संपर्क करके आएंगे, आपको स्टेशन से ही रिसीव कर लिया जाएगा। पुजारी कौन रहेगा? पुजारी हम ही रहेंगे और हमारे पिताजी ही रहेंगे। वो आश्रम से बता दिया था कि ये पुरोहित आपका काम करेगा और काम खत्म होने के टाइम इसको खुश कर देना। तो खुश करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता, कौन कितने में खुश होता है वो तो हमको पता नहीं। तो बाद में हम वो पिंडदान किया, कंप्लीट करने के बाद उसको पूछा, वो एक अमाउंट मांगा और फिर हम जब उधर से प्रेस सिला गया फिर अलग से उसको दक्षिणा देना पड़ा। तो अलग अलग जगह में पुरोहित को दक्षिणा देना पड़ा। तो ये आपका जो पैकेज बताया, इसमें भी क्या ये पुरोहित को अलग अलग दक्षिणा इसके ऊपर भरना पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पैकेज के अंदर में फिर अलग से आपको कहीं पे 1 रुपये देने का ज़रूरत नहीं है, उसी पैकेज के अंदर में आपकी सारी व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा, ये सारी व्यवस्था का मतलब क्या है? ये मानो कि इधर से कोई आदमी गया, वो ट्रेन से उतरा, उसके बाद क्या क्या सेवा मिल सकता है इस पैकेज में? स्टेशन से विष्णुपद मंदिर ले जाया जाएगा जो कि आपको फ्री रहेगा। जो डोमेट्री में रहेंगे वो फ्री रहेगा। खाना एक समय का भोजन फ्री रहेगा। अगर कोई मतलब जिस दिन पिंडदान करेगा उसी दिन उसका आना जाना फ्री रहेगा। अगर कोई घूमना चाहे, रहना चाहे तो फिर उसका अलग से पे करना पड़ेगा। अच्छा, और एक चीज़ बहुत ही प्रॉब्लम मेरा हुआ था, तो जगह जगह में वो हर तरह का टोकन मांग रहा था कि 10 रुपीज़ 20 रुपीज़, ये सभी जगह में मांगते रहता है। तो ये ऐसे तो मैं धोती गेंजी पहन के गया था और अकेला गया था, तो वो बीच बीच में मनी बैग निकाल के वो रुपया देना बहुत ही तकलीफ वाला बात है। तो इस पैकेज में भी क्या उसको जगह जगह में ऐसा देना पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं, उस पैकेज में आपको फिर कहीं पे एक पैसा देना लेना नहीं पड़ेगा। उसी पैकेज के अंदर में सारा जगह पे दे दिया जाए। जगह जगह में तो हर तरह का लोग हमारा कुंडली पूछते रहा, कौन बाप पिता था, कौन पिता का बाप था, ऐसा कुछ पूछते पूछते हमको हैरान कर दिया। इवन हम जब पिंडदान कर रहा था तब भी तरह तरह का आदमी आके बार बार पूछते रहा। इसमें क्या इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन है? जी बिल्कुल, अगर हमारे से संपर्क करके आएंगे तो आपको कोई परेशान नहीं किया जाएगा। कोई नहीं पूछेगा कि आप कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या करना है, कहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा, ये जो पिंडदान है वो तो बहुत ही एक आध्यात्मिक क्रिया में माना जाता है। इसमें जो सामग्री आता है, क्यों पूछ रहा हूँ कि मेरा जो पुरोहित था वो बहुत ही क्या बोले, वो
कम दाम का चीज़ खरीद के ले आया था। सभी जगह अच्छा चीज़ देने का कोशिश में लगा रहता हूँ। और ये तो मेरा पिता माता का मामला था जो मेरे लिए सबसे बड़ा ईश्वर है, तो ये चीज़ देना मुझे ठीक नहीं लगा। तो ये आप जो थाली में जो बता रहे हो, जो सामग्री आएगा, वो सामग्री कैसे रहेगा? सामग्री जो रहेगा वो एकदम अच्छी क्वालिटी का होगा, अच्छे ढंग का होगा। पिंडदान के टाइम मुझे तो कोई आसन वगैरह भी मुझे ही नहीं, मेरे साथ जो साथी होता उसको किसी को कोई आसन वगैरह नहीं मिला था। तो इसमें पैकेज में क्या मिलेगा? जी बिल्कुल, जो हमारे थ्रू आते हैं उनको आपको बैठने के लिए आसन मिलेगा, पिंडदान करने के लिए एक थाली एक लोटा मिलेगा। और एक चीज मुझे बहुत ही बुरा लगा था, पिंडदान के बाद पिंड विसर्जन का तो कोई जगह ही नहीं था, वो तो एक जगह डंप करना पड़ रहा था डस्टबिन की तरह, वो मुझे बहुत बुरा लगा था। आपका सिस्टम में क्या रहेगा, वही रहेगा? जी नहीं, हमारे पास में पिंडदान करते हैं तो आपको फल्गु घाट पे पिंडदान कराया जाएगा, फल्गु नदी में विसर्जित कराया जाएगा, नहीं तो फल्गु नदी के पास में जो गौ रहते हैं उनको दिया जाएगा। अच्छा, ये जो 3 जगह या 5 जगह जो जगह जाना है पिंडदान के लिए, कैसे ले जाओगे? हमारे पास आते हैं तो जो नॉर्मल काम करते हैं फल्गु नदी, विष्णुपद, अक्षयवट, उनको ऑटो से ले जाया जाएगा। मैं तो भारत सेवाश्रम में था, तो इसलिए मेरे लिए वो भारत सेवाश्रम संघ से वो विष्णु मंदिर बहुत दूर था, तो मैंने एक चीज़ तो मिस कर गया कि विष्णु मंदिर का आरती नहीं देख पाया। भारत सेवाश्रम संघ का आरती देखा था। तो ये आपका पैकेज से जो जाएगा वो क्या ये आरती ठीक से देख पाएगा? संध्या में जो आरती होती है, रात्रि वेला में भगवान का मल्यागिरी चंदन से जो श्रृंगार होता है, वो श्रृंगार का दर्शन कर पाएंगे लोग, तुलसी अर्चना कर पाएंगे। तो अगर कोई ये पैकेज के माफिक काम करना चाहे का क्या करना होगा? अगर कोई पैकेज के माफिक काम करना चाहता है तो अगर किंचित पूजा करना चाहता है तो उसको 500 रुपया एडवांस करना पड़ेगा, और अगर मध्यम और उत्तम करना चाहता है तो 1000 रुपया एडवांस करना पड़ेगा, क्योंकि उसी पैसे के अंदर में उनका अरेंजमेंट किया जाएगा। ये एडवांस अगर हम आपके तरह से उठा ले और आपको भेजे तो उसमें आपका कोई दिक्कत है? वो तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इधर के रहने वाले हैं। जो पैकेज लेना चाहता है आपके पास में नाम, नंबर और पैकेज बता के भेज देगा, आप हमें भेज देंगे, उसका सारा व्यवस्था हो जाएगा। आज ये 18 मार्च 2024। तो আজকে আমরা এই মানুষজির কাছ থেকে যে পিণ্ডদানের বিভিন্ন 3টে ক্যাটাগরি শুনলাম এবং তার যা প্যাকেজ প্রাইস শুনলাম, সেগুলো ভবিষ্যতে অবশ্যই চেঞ্জ হতে পারে। তবে এই প্যাকেজগুলোর কোন সময় কি প্রাইস সেগুলো আমরা আমাদের ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো। এর আগে আমরা যে নর্থ বেঙ্গল, সিকিম এইসব জায়গায় যারা বেড়াতে যায়, পিক সিজনে দেখা যায় এখানে গাড়িটা ভীষণ রকম উল্টোপাল্টা দাম নেয়। তো সেইগুলো যাতে মানুষকে খানিকটা একটা নির্দিষ্ট বাজেটের মধ্যে নিয়ে আসা যায় তার একটা চেষ্টা করে ওখানে একটা অ্যাসোসিয়েশন বানিয়েছিলাম। তো সেটা যথেষ্ট সাকসেসফুল। এখন মানুষজন ভীষণ নিশ্চিন্তে খুব একদম রিজনেবল প্রাইসে একদম পিক সিজনে এই জায়গাগুলোতে ঘুরতে যায়। তো আমাদের এই সংক্রান্ত যে ভিডিও আছে তার লিঙ্ক আমি নিচে ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো। সেখানে আপনি যদি তাদের কমেন্টগুলো চেক করেন দেখতে পাবেন যে তারা খুব স্যাটিসফাইড হয়। তো আমরা আমাদের সেই লক্ষ্যে ইতিমধ্যে অনেকটা সাকসেসফুল। তো আমরা এবার চাইছি যে গয়াতে এই পিণ্ডদান নিয়ে লোকের মনে যে আতঙ্ক আছে, যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, সেগুলো যাতে কোনোভাবে তার থেকে বাঁচানো যায়। তো আমরা যেটা ঠিক করলাম যে যারা পিণ্ডদান করতে যাবে তারা তাদের যে অ্যাডভান্স অ্যামাউন্টটা আমাদের পাঠাবে। আমার নাম হচ্ছে রাজীব প্রামাণিক, আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলের নদিয়া জেলার রানাঘাটে থাকি। আর রানাঘাটের একটা অত্যন্ত পরিচিত কোঅপারেটিভ ব্যাংক, রানাঘাট পিপুলস কোঅপারেটিভ ব্যাংকে আমি সিস্টেম ম্যানেজার হিসেবে কাজ করি। আর তাছাড়া আমাদের যে কার্ড সার্ভিস রয়েছে সেই কার্ড সার্ভিসেও আমাদের যথেষ্ট একটা ট্রাস্ট তৈরি হয়েছে। সুতরাং আপনারা নিশ্চিন্ত মনে আমাদের টাকা পাঠিয়ে জায়গাগুলোতে বুক করে যেতে পারেন। তো আমরা চেষ্টা করব যাতে এই পিণ্ডদানের বিষয়টা যতটা সম্ভব সিকিওর করা যায়, কারণ আমাদের গত যে ভিডিও ছিল পিণ্ডদানের ওপর তার উপরে প্রচুর মানুষের প্রচুর কোয়ারি আসছিল।
তো আমরা তাদের বলেছিলাম যে আমরা চেষ্টা করব যে এই পিণ্ডদানের বিষয়টাকে আরও সহজে আরও ভালোভাবে কি করে করা যায়। আপনাদের অ্যাডভান্স পাঠানোর আগে নামটা দেখে নেবেন রাজীব প্রামাণিক আছে কিনা, এবং আমাদের ইউপিআই আইডি 9851356390 এটা আমাদের ডেসক্রিপশানেও পাবেন। আপনাদের পেমেন্ট পাঠানোর পর পেমেন্টের স্ক্রিনশটটা আমাদের নিচে যে কন্ট্যাক্ট পার্সনের ডিটেল দেওয়া থাকবে ডেসক্রিপশানে, সেখানে অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ করবেন, এবং সেই হোয়াটসঅ্যাপে আপনারা মেনশন করবেন যে আপনাদের নাম কি, ফোন নাম্বার কত, আপনারা কোন ডেটে পিণ্ডদান করতে চাইছেন, কতজন মিলে আসছেন, এবং এই ডিটেলটা পাঠানোর পর আমরা 1 থেকে 2 দিনের মধ্যে আপনাদের এই মানসজির কাছ থেকে সমস্ত কনফার্মেশন নিয়ে তার ডিটেল আপনাদের পাঠিয়ে দেবো। আপনারা সেই অনুসারে মানসজির সাথে কন্ট্যাক্ট করে নিশ্চিন্ত মনে পিণ্ডদান করে ফিরে আসতে পারবেন। জয় মাধব। जय नारायण।